हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज योर स्टडी। इज योर स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज लाइट एंड रिफ्लेक्शन, एनसीईआरटी चैप्टर 10. So we'll discuss the different phenomena of light, and really it will be the backbone for the next classes where you are going to study some more aspects of the lights, the particle nature, the wave nature, and the dual nature of the light in class 11th 12th standard. So it will be very useful for you to understand and very easy. So I have divided this class into three portions. The first part is about the introduction and the spherical mirror, where I also discuss the laws of reflection and the plane mirror, the convex and concave mirrors. The second part is the image formation by spherical mirrors, many questions asked. And the third part is about the refraction of the light. However, the construction of eyes is also there. Then let's see it later. But some other aspects, some other phenomena. So let's start now. So in this class, I am going to discuss the light, reflection and refraction. In this chapter, first I will discuss about the light, what is light, and what are the different phenomena of the lights, and the laws of reflection and the spherical mirrors. So if I talk about the lights, so broadly I can classify the light source in two categories. One is from the nature, that is the natural source, and other is the artificial source. So if I say about the natural sources of the light, so it is very familiar and known to everyone, is the sun, the light energy from the sun. You know, here I have given one picture. Here you see the sunlight. The light is coming from this sun to the earth, and it is however it is also going to some other planets, but I am concerned about the earth here. So if there is a far distance around 151 million kilometer, the distance is in between earth and sun is there, and it takes almost 8 minutes 20 seconds to reach a sunlight from the sun to the earth. So the sunlight I am seeing here on the earth at this time, which have already sent 8 minutes 20 seconds before from the sun. And you see that it takes 8 minutes. And how much is the speed of the light? Do you know? Can you imagine? 3 lakh kilometer in 1 second. In 1 second, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So in 1 second, you are going to 3 lakh kilometer, and then it takes 8 minutes. So it's a huge gap and distance between the earth and sun. And then even in the mid afternoon, you see lots of heat in the summer season. The reason is that can you imagine that if it is closer, then definitely it will be very difficult to survive. And artificial lights are also there. So very there is a curiosity since the beginning that the human wants to know that how the light propagates and how we see the objects. So all these things we are going to discuss in this class. So we'll see that. First of all, I want to ask a very simple question, that if you are going to study the light, so I see some object in light. At night, if there is light, then I would able to see the object. If there is no light, if there is a dark condition, I will not able to see any object. Why? What is the reason? अगर लाइट है तो आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, और अगर लाइट नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. क्यों? व्हाई? सो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. अगर किसी चीज को हम देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं? हम लाइट को देखते हैं या फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास तो अपना कोई लाइट नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? सो व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. सो द क्वेश्चन आंसर इज दैट an object reflects light. When a light falls on a particular object, it reflects the object. तो जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनता है, we see the image of the object. So an object reflect lights that falls on it.
दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय योर आईज इनेबल अस टू सी थिंग्स। जब इस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी आंखें देखती है, देन वी सी द ऑब्जेक्ट्स, और इमेज हमारे रेटिना पे बनता है, आंखों के ऊपर, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हम लाइट को नहीं देखते, रिफ्लेक्शन के बाद हम उसके इमेज को देखते हैं और इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। सो नाउ विल आस्क द क्वेश्चन, इफ योर ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट इवन इफ ट्रांसमिट द लाइट, देन व्हाट विल हैपन? अगर लाइट को ट्रांसमिट कर दे, हो सकता है कि वो पार्शियली ट्रांसमिट करे, हो सकते है कि वो टोटली ट्रांसमिट करे। इन सच सिचुएशन हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू सी इट? अगर वो टोटली ट्रांसमिट कर रहा है तो फिर कैसे होगा? सो even in that case we are going to see the object because it is transmitting the ray of light. तो हम कहेंगे we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. तो ये क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए कि ट्रांसमिट हो गया तो हम नहीं दिखेंगे, रिफ्लेक्शन होगा तभी देखेंगे। मूविंग फर्दर, अब हम यहां पर देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फेनोमेना है लाइट के साथ जो हमें देखना चाहिए। लाइट का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, जो हमें सीखना चाहिए, और सीखना जरूरी भी क्यों है? क्योंकि जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो अपना चेहरा तो हम मिरर के सामने ही देखते हैं और रोज देखते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन साइंस कहता है कि वो इमेज कैसे बनता है। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। हम ये जानना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कैसे बनना को जानना ही तो साइंस है। तो यहां पर एक फेनोमेना है कि द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। अगर हम प्लेन मिरर का केस लें तो वहां पर भी हम अपने तस्वीर को देखते हैं, तो वहां पर हमारा इमेज बनता है उस मिरर में, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये एक फेनोमेना है, क्यों होती है ये हमें लाइट चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है। समटाइम्स you have seen, particularly many times you have seen there is a possibility that you have seen the rainbow in the sky. अब ये रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, कब होता है? हर दिन तो हमें रेनबो नहीं दिखाई देता। यू सी द रेनबो इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, कि जब आसमान साफ होता है बारिश के बाद और अचानक लाइट उस पर पड़ता है तो फिर सस्पेंडेड पार्टिकल जो है उसमें रहते हैं और हमें रेनबो का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है हम वो देखेंगे, लेकिन अभी इतना तो हम कह सकते हैं कि हमें कभी कभी दिखाई देता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है? हर दिन हमें रेनबो नहीं दिखाई देता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इट इज वन ऑफ द फेनोमेना ऑफ द लाइट। सेकेंडली, इसके अलावा भी बहुत है, बेंडिंग ऑफ द लाइट। अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को, या लाइट को जनरली जो भी लाइट आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए रे ऑफ लाइट यूज करते हैं, आगे बताऊंगा। सो इट इज पासिंग थ्रू द वन मीडियम टू अदर। अगर मान लो कि वो एयर से वाटर की तरफ जा रहा है तो क्या वो एक ही तरह रहेगा, या उसका स्पीड कम होगा, या कहीं मुड़ेगा, बेंड होगा, नहीं होगा? सो बेंडिंग ऑफ द लाइट इज आल्सो वन ऑफ द फेनोमेना। तो यहां पर कुछ फेनोमेना है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और हाँ, रात में स्टार ट्विंकल करते हैं, चमक टिमटिमाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई इट हैपेंस? सो ऑल these phenomena you are going to see in this chapter, so that's why it is very interesting and you must know it. The beautiful colors of rainbow, bending of light by medium and so on. ऐसे बहुत सारे फेनोमेना मैंने कुछ लिस्ट किया है यहाँ पर। देखिए, जैसे मैं इमेज फॉर्मेशन में मिरर कहता हूं, तो अभी हमारे पास ये एक प्रकार का मिरर है जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और ये कन्वेक्स मिरर है। तो ये कन्वेक्स मिरर भी आपको ये एफ पे इमेज बना रहा है, और ये किसी ऑब्जेक्ट जो फॉर डिस्टेंस पे है वहां से ये लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर इमेज बन रहा है। तो ये सब हम जान पाते हैं कब, जब हम इस लाइट चैप्टर को पढ़ते हैं। बचपन में आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा और उसमें कुछ इस तरह का कनकेव मिरर या कई लेंस आपको रहते थे, और उस कनकेव मिरर को आपने सुना होगा कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में एक पेपर नीचे रख दें तो वो जल जाता है, जलने लगता है। रीजन इज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। लाइट बहुत दूर से इन्फिनिट से आ रही है, तो ये मिरर क्या कर रही है, उसको कंसंट्रेट कर रही है, फोकस कर रही है एक पॉइंट पे। शुरुआत में वो आग ना भी पड़े, वो ब्लैक कलर कर दे उसको, बाद में अगर ज्यादा देर रखेंगे तो वो जल भी सकता है। Second, we are going to see it another example here, the twinkling of the star. At night we see it. रात में हम twinkling of a star भी देखते हैं।
और ये भी एक लाइट का फेनोमेना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन चीजों के बारे में अच्छे से जान सकते हो, इसलिए अच्छे से पढ़ना। अब हम देखेंगे अगला, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कहा, तो ये देखिए ये आपका रेनबो है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, हर हमेशा रेनबो दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई देता है तो सच में अच्छा लगता है। बढ़ेंगे आगे। अभी मैंने ये जो कहा था बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में, बेंडिंग ऑफ लाइट में भी आपको ये भी एक फेनोमेना है कि इंसिडेंट रे आया और एयर से अगर हम किसी दूसरे मीडियम में गए, वो मीडियम चाहे वाटर हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर रे ऑफ लाइट जो है एक तरह से बैंड नहीं होता, डिपेंड करता है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया है। ऑल विल सी द रिफ्रैक्शन आफ्टर द एंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द रिफ्लेक्शन, टू लर्न द रिफ्लेक्शन। आर यू रेडी? चलिए देखें रिफ्लेक्शन के बारे में। हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इतना तो सबको पता होगा कि सर रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है तो सरफेस पे अगर इंसिडेंट होता है तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब जानना जरूरी है। यहां पर हमारे पास एक देखिए डायग्राम है जिसमें हम रे ऑफ लाइट लेते हैं। हम ये मानते हैं कि देखो अगर मान लो एक टॉर्च की रोशनी है तो बहुत सारा लाइट उसमें एक तरह से इस तरह से प्रकाश की बूंद जा रही है, समझ रहे हो। सो वी रिप्रेजेंट एंड we represent the light as a ray in the form of ray, कि हम ये मानते हैं कि वहां से ऐसे आ रहा है, और नॉर्मली इनिशियली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन अजम्पशंस है ये एक अजम्पशन ही है, हमेशा नहीं होता है, हम ये मानते हैं कि ऐसा होता है। लाइट का जो नेचर है, शुरू से कई तरह की थ्योरी दी गई कि लाइट को पार्टिकल समझो, लाइट को वेव समझ लो, बाद में बोला गया दोनों ही समझ लो, क्वांटम मैकेनिक्स आया। तो ये जो हायर पार्ट है लाइट के बारे में, ये आप आगे की क्लास में सीखोगे, हायर क्लास में। लेकिन 10th लेवल तक हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जो कहीं सन से आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है, उसको रे ऑफ लाइट समझ लो। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप बोलोगे सर मेरे घर में तो ट्यूबलाइट लगा हुआ है और उससे तो कोई रे दिखाई नहीं देता मुझे। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम सेइंग इट, कि भाई वहां से तो कोई रे वगैरह दिखाई नहीं देता, वो तो लाइट दे रहा है अपने चारों तरफ आ रहा है। ये जो आप रे ऑफ लाइट यहां पर ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ऐसा मानते हैं कि किसी सोर्स से ये यहां से इंसिडेंट रे आया और फिर यहां से अगर ये प्लेन सरफेस है इस पे रिफ्लेक्ट होगा, पी हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस कहेंगे, और यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। सो नॉर्मली टू गेट द एंगल आई हैव टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर नॉर्मल टू द प्लेन। हम नॉर्मली लेते हैं क्योंकि नॉर्मल को हम 90 डिग्री पे मान सकते हैं, बाकी एंगल्स में इधर उधर वेरिएशन हो सकता है, इसलिए हम यहां पर क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। और इससे देखा गया कि भाई नॉर्मल लेने के लिए नॉर्मल ही क्यों लेते हैं, कोई दूसरा एंगल क्यों नहीं लेते, ये सोच के मुझे बताना, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल से देखा गया इंसिडेंट रे का, नॉर्मल से देखा गया इंसिडेंट रे का तो यहां पर हमने देखा कि हमें एक नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल लिया गया, और नॉर्मल हम आसानी से उस प्लेन के ऊपर 90 डिग्री पे ड्रॉ कर सकते हैं। और उससे देखा गया अगर किसी और से लेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, तो वहां पर देखा जाएगा इंसिडेंट रे और उस किसी पर्टिकुलर एंगल पे लोगे तो उसके बीच का एंगल नहीं है, नॉर्मल से उसका एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये आई और आर इक्वल हुआ। और साथ साथ ये देखा गया कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी देखा गया। अंडरस्टूड? सो दे हैव गिवन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट यू नो फ्रॉम द क्लास 8th चार्ट। तो क्या है उसके बारे में, ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बोला गया कि यहां पर यह बोला गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों बराबर होंगे। ये जो लिखा गया है पहला यहां पर
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में लाई करते हैं, कोई दूसरा प्लेन नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस पे है, तो इसी पे सारे रे हो रहे हैं, किसी दूसरे प्लेन में नहीं आ गए, ऐसे नहीं हो गए। बढ़ेंगे आगे। नाउ सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, विल इट बी हैपन ओनली इन द प्लेन और इट कैन हैपन इन एनी प्लेन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश बच्चा जवाब देता है कि ये सिर्फ प्लेन सरफेस पे होगा, इट विल नॉट हैपन इन द कर्व सरफेस। नो, रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस ऑन द कर्व सरफेस एज वेल। ये देखिए, these law of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces। ये बातें ध्यान रखना, चाहे spherical surface भी होगा तब पर भी ये लागू होता है। नेक्स्ट, अब चूंकि हमने पिछले अभी नाम लिया था spherical surface के बारे में, यहां देखो ये हमने नाम लिया spherical surface के बारे में। सो व्हाट इज द spherical surface, वो हम जानेंगे। तो स्फेरिकल सरफेस जानने के लिए अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हमने एक देखा प्लेन सरफेसेस, प्लेन मिरर के बारे में जानते हो, जो पूरा प्लेन होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर हमेशा आपका मिरर जो है प्लेन हो, वो कर्व्ड भी हो सकता है। सो देयर आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड्स। तो वो कर्व भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। जब कर्व होगा कुछ इस तरह से, तो ये इनवर्ड भी होगा और आउटवर्ड भी होगा, ये हमें ध्यान में रखना होता है। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अब एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर क्या होता है। अगर हम कहें कनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स that is faces towards the center of the sphere is called a concave mirror। जैसे आप चम्मच से खाना खाते होगे, तो चम्मच में जिधर आप खाना उठाते हो, जिसपे कुछ रखते हो, जैसे दाल आप ले रहे हो, तो उसके जिसमें रखते हो ये इनसाइड वाला पोर्शन, वो हमारा क्या होता है, कनकेव। और जो बाहर उठा हुआ पोर्शन है वो हमारा कन्वेक्स होता है। जैसे मान लो एक ग्लास में ही अंदर वाला कनकेव और ये बाहर वाला जो उठा हुआ है ये कन्वेक्स है। या आप करछी ले लो जिससे हम दाल वाल परोसते हैं, तो उसमें भी देखो जिसमें दाल रहता है वो कनकेव है और बाहर वाला पोर्शन हमारा क्या है, कन्वेक्स है। इस बात का ध्यान रखना। सो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो इनसाइड सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग होता है और आउटसाइड सरफेस पे कोटिंग होती है और नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो उसका बाहर वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, इनसाइड वाला पोर्शन जो है नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, ये कन्वेक्स मिरर होता है। ये है फिगर, ये देखिए ये कनकेव मिरर है। और अगर हम दूसरा देखें यहां पर, तो ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग और कोटेड सरफेस होता है। ऐसा नहीं है कि कन्वेक्स मिरर को हम ऐसे उठा के रखते हैं, हम कन्वेक्स मिरर को ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसमें जो कोटिंग चढ़ाएंगे वो इनसाइड में बंद कर देंगे। बाहर वाला जो ये बल्ज पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन है, ये सब हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। क्योंकि ये बाहर वाला है इसलिए ये कन्वेक्स है, और ये कनकेव है क्योंकि इसमें इनसाइड पोर्शन जो होता है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है। इस बात को ध्यान में रखना होता है, नहीं तो शुरू में बच्चा तो इस बात के लिए कंफ्यूज होता है कि सर रिफ्लेक्टिंग उसको बोलूं, कौन सा कन्वेक्स कौन सा इधर रखूं, उलट के रखूं, पलट के रखूं, ऐसा कंफ्यूज मत होना। सिर्फ याद रखना इनका ये जो कनकेव है, इनसाइड पोर्शन जो है उसका रिफ्लेक्टिंग होता है। बढ़ेंगे आगे। अब हम कोई भी स्फेरिकल मिरर लेते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है भाई, टर्म्स कहां से आ गए अचानक। भाई जो स्फेरिकल मिरर बना है वो तो आपने एक छोटा सा पर्सन, ऐसा लगता है कि कहीं स्फेयर से आपने कट कर लिया है। अगर गौर से देखो तो इसको आपने एक बड़ा सा स्फेयर से कट किया हुआ है,
ठीक है, यहां से लिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे, चूंकि ये बड़े से स्फीयर का एक पार्ट है, तो उस बड़े से स्फीयर का सेंटर होगा, उस बड़े से स्फीयर का रेडियस होगा। तो बड़े से स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस बड़े से स्फीयर के सेंटर और इस आउटर सरफेस यानी मान लो पोल ले लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ऑल दीज टर्म्स दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। सो सम डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है पोल। सो व्हाट इज द पोल? देखो, जो अभी हमने लिया था, आपको दिखाया था पीछे, ये हमारा कौन सा मिरर है? अगर हम बाहर से इसको कवर कर देते हैं तो कनकेव है। अब इस वाले इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पे जो पॉइंट होगा, जो सेंटर पे पॉइंट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। वो देखो जरा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पे पॉइंट होगा, मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट सेंटर पे है, तो इस पॉइंट P को हम कहते हैं पोल। इस पे, ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। और ये पोल जो होता है स्फेरिकल मिरर पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है, और इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास दूसरा नंबर पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फेरिकल मिरर इज मेड अप ऑफ। यानी मैंने अभी बताया था कि अगर मान लो ये आपने कोई भी एक, ये बाहर से लगे, मैंने कनकेव मिरर ले लिया, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज मेड अप ऑफ, और इट इज द पार्ट ऑफ दैट ओरिजिनल स्फीयर, right? So the center of that original sphere is called as the center of curvature and it is denoted by capital C, small c नहीं, और जो P भी है वो कैपिटल P है, ये याद रखना। सो अगर हम देखें, ये अगर हमारा कनकेव है, तो फॉर कनकेव मिरर इट इज लाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये उस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, लाई, और ये हमेशा जो होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होता है। जो सरफेस तो यहीं पर है, लेकिन इट लाई आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर इट इज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ द, ये सामने होता है बिल्कुल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर है, उसके सामने ये रखा हुआ है। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अभी कन्वेक्स मिरर में अंदर का पोर्शन तो ये रहता है, और ये है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, तो ये इस तरह के सेंटर का पार्ट होगा। इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां होगा, क्योंकि ये जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो तो इधर की तरफ है, बैक साइड में है, रिफ्लेक्टिंग तो इधर है, ये सामने है, लाइट तो इधर से आ रही है, तो ये उसके बिहाइंड होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर मान लो हमने ये कनकेव मिरर लिया, और इस कनकेव मिरर का सेंटर और हम पोल जान चुके हैं। अब C और P के बीच का डिस्टेंस अगर हम लेंगे CP, या इसको PC भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर और द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जो भी कहना है, तो ये PC ही कहलाता है रेडियस। क्योंकि सर्कल से भी आपको रेडियस का डेफिनेशन मालूम है कि सेंटर और सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका ये पार्ट है, तो ऑफ कोर्स ये सेंटर होगा, और सेंटर से P के बीच का डिस्टेंस ये रेडियस होगा। इस रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो उस रेडियस ऑफ द स्फीयर जिससे वो बना हुआ है, जिसका वो पार्ट है, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और PC जो हमारा है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और PC हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखो, अब हम जान चुके हैं कि यहां पर हमें पता चल गया है P, ये जो कि सेंटर पे होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, हमें पता चल गया है C, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द C एंड P। ऐसा हम मानते हैं कि C और P से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जिससे पास होगा, उसी को हम प्रिंसिपल मेजर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। यहां पर है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड
एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पी और सी से पास होता हुआ लाइन, यहां पर देख लीजिए ये वाला पी और सी से पास होता हुआ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन याद रहे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कोई बच्चा ऐसे आके बोलता है सर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, भाई नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे पोल पे होना चाहिए। यानी रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल। पोल पे वो नॉर्मल ही होता है। तो ये एक यूनिक लाइन है, खास लाइन है, कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो सकता। बढ़ेंगे आगे। नाउ विल डिस्कस द अनदर टर्म दैट इज द फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। मतलब फोकस तो एक ही है, लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का फोकस अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है, अलग अलग जगह पे भी होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मान लो कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। पहले कनकेव से स्टार्ट करते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है क्योंकि इसका आउटर सरफेस आपने जो है कोटेड किया हुआ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाया हुआ है। तो आप अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखते हैं इन्फिनाइट पे, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको कहते हैं ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो यहां पर एक नॉर्मल डालो और यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करो, तो ये एक पॉइंट से पास करेगा यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है यहां पर। इसी तरह से हम एक और रे ले सकते हैं। आप चाहो तो 3 रे 4 रे ले सकते हो, लेकिन जितना रे लोगे कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही बढ़ जाती है। मिनिमम 2 रे सफिशियंट होता है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर 2 रे और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे 2 रे लिया गया है, और यहां से रिफ्लेक्ट होके एफ से पास कर रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है इसी को हम फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। सिमिलरली तो यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक्चुअली मीट हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कन्वेक्स मिरर का, तो यही सेम कंडीशन है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, और यहां से इमेज ये कोई भी ऑब्जेक्ट का यहां से रे ऑफ लाइट समझो आएगा, क्योंकि उधर से ही पास करेगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर भी हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान के और इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा रे के लिए तीसरा रे। और आपको मालूम है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पास करता है, जो आगे बताने वाला हूं, वो उसी लाइन पे वापस आ जाता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये उसी लाइन पे वापस आ जाता है। आगे भी बताऊंगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर भी ये रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहां पर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनली मिलता नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। यहां पर हम मानते हैं, यहां वर्चुअल केस होता है कि अगर इसको पीछे की तरफ हम ले जाएं, इस सभी रे ऑफ लाइट को इधर की तरफ, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं। ये उसका वर्चुअल फोकस की तरह, एक तरह से कहो तो ये फोकस बनता है एफ। यहां पर इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट, एक्चुअली इट डज नॉट मीट, वो कभी मीट नहीं करता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, यहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर की तरफ जा रहा है, कहीं एक्चुअली मीट नहीं करेगा। बट इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट फॉर कन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हमने देखा। तो कन्वेक्स अगर हम डेफिनेशन दें फोकस का, सो द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन from a spherical passes through a common point is called as the focus of the mirror. So light rays parallel to the principal axis after reflection passes through a common point is called as the focus. So in case of concave mirror it actually meet at a particular point, but in case of convex mirror it appears to be meeting at a point. तो ये दोनों बातें ध्यान रखना होता है। और हाँ, अब अगर हमें यहां इस केस में देखो, आपको F का एक नया लोकेशन पता, P आपको पहले से पता है। सो PF हमारा क्या होता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ होता है। सो फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। ये बात स्टैंडर्ड है कि अगर आप फोकस को हमेशा कैपिटल F लिखेंगे और फोकल लेंथ को स्मॉल f लिखेंगे। आप F ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैपिटल F है वो तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर्चर। अब बोलोगे कि सर ये क्या बोला है। अरे भाई, आपको बताया था अभी कि कोई भी आप स्फेरिकल मिरर जो कि एक स्फेयर का पार्ट होता है, मान लो मैंने कनकेव बनाया, तो अगर इसको प्लेन में हम ड्रॉ करें तो वास्तव में लगता है कि ये एक सर्कल का पार्ट है। तो इस सर्कल का मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर M और N।
So the distance between M and N is the aperture. Actually, it seems like the diameter of the circle. कहते हैं the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. तो ये जो डिस्टेंस mn है ना, यही अपर्चर है. ये 2D में एक सर्कल की तरह दिखता है और लगता है कि इस एंड पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए हम ये जो डिस्टेंस mn है इसको हम अपर्चर कहते हैं. अपर्चर किसके बारे में बताता है? नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अगर ये छोटा है तब तो हम मान सकते हैं, बहुत बड़ा होगा तो फिर हम इसको mn को अपर्चर करना या डायमीटर कहना मुश्किल सा लगता है, पहली बात. और दूसरा, अपर्चर जितना ज्यादा होगा वो उतने ही लाइट, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. उतने ज्यादा दूर से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो उसको ज्यादा, मतलब ये बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना ही ऑप्शन मिलेगा, उतने दूर से रे ऑफ लाइट उसके ऊपर आएगा तो वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, रिफ्लेक्ट करा सकता है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग of that, the how much ray of light can be reflected and of what should be the distance of that object. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक मंगल ग्रह पे रख दिया कोई ऑब्जेक्ट और उसका इमेज यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग छोटी सा रख के ले रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होगा. उसके लिए उतना बड़ू सा आपको अपर्चर वाला मिरर या लेंस भी चाहिए होगा. बढ़ेंगे आगे, अभी हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं. सो फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ. हमें यह देखा गया है कि r इजकल टू क्या होता है, 2f होता है. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको r से बोलते हैं. और नॉर्मली जैसे अगर मान लो हमने ये बनाया था इधर, तो आपने देखा था कि इसमें ये हमारा p है, इधर अगर f है, अगर इसको हम ये कर देते हैं, यहां पर कहीं हमारा c था, तो c और p के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो r है. और r और ये जो p और f के बीच का डिस्टेंस है ये हमारा फोकल लेंथ f है. तो ये डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट f और b के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस f और c के बीच का होता है. और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा CF है प्लस FP है यही R है, और ये F है और ये F है, तो ये 2R है. हालांकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका प्रूफ अलग से है, वो जब आएगा तब देख लेंगे. लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बताया कि जो स्मॉल अपर्चर का लेंस होता है उसमें हम ऐसा मान सकते हैं, बड़े वाले में ऐसा नहीं मानेंगे. हाँ, अपर्चर जब भी होगा चाहे छोटू हो या बड़ू हो, ये m और n के बीच का डिस्टेंस ही mn कहलाता है. ये किसी भी स्फेरिकल सरफेस का दो एंड पॉइंट्स पे अगर डिस्टेंस ले लोगे तो ये उसका अपर्चर कहलाता है, लेंथ mn. अंडरस्टूड? सो आई होप सो अप टू नाउ इट इज क्लियर टू यू. यहां तक आपको समझ में आ गया? थैंक यू. So this is the end of this class. In this class, what have you learned? You have learned about the what is light, right? And the reflection of light. Then you have also learned about the spherical mirror, the concave mirror, the convex mirror. And you have also learned about in this class that the some terms related to the spherical mirror, that is the focus, center of curvature, pole, principal axis. All these are the basic necessary things related to the reflection of light, the spherical mirror. In the next class, I am going to start the image formation by concave mirror and convex mirror when the object is located at different. मतलब हमारे पास एक concave mirror है तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे ये हमें पता चलना चाहिए ना. तो ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.